Hello everyone. Today we are discussing reorder paragraphs of May prediction. So our first reorder paragraph is choose a school. First of all, we read all the lines. There are more than 100 schools in the country. This is important that you see the facilities and accommodations around the school. Never, if you can avoid it, accept the offer before going to the place and having a look. You should go and see once you have a chance because you might be living off campus in the second year. So first of all, हमारा किस चीज के बारे में बात है? स्कूल में. Clear? So our first sentence is there are more than 100 schools. How many schools? 100 schools. There are more than 100 schools in the country. So country यहाँ पे क्या है? Common noun. Clear? Common noun है और schools भी क्या? School का कोई particular नाम नहीं है तो school भी क्या हमारा common noun है. So this is our first sentence. There are more than 100 schools in the country. This is important that you see the facilities accommodation around the school. हम किसी भी स्कूल की facilities और accommodation कब चेक करेंगे, कब important होगा हमारे लिए? Never, if you can avoid it. अगर हम किसी भी स्कूल को अवॉइड नहीं कर सकते, हमें वहां के बारे में जो हमने सुना है या फिर जो देखा है हमें ठीक लगा है, accept the offer before going to the place and having a look. You should go and see once you have a chance. It means अगर हमें कोई भी ऑफर मिला है वहां से तो एटलीस्ट हमें एक टाइम पर वहां पे विजिट करना चाहिए. देन नेक्स्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट दैट, ये इम्पोर्टेंट है, यू सी द फैसिलिटीज एंड अकोमोडेशन अराउंड द स्कूल, कि हमें स्कूल के जो फैसिलिटीज और अकोमोडेशन है उनको चेक करना चाहिए, आसपास कैसा इन्वायरमेंट है. एंड देन नेक्स्ट, बिकॉज यू मे माइट बी लिविंग ऑफ कैंपस इन द सेकेंड ईयर, मे भी हो सकता है कि सेकेंड ईयर में आप कैंपस छोड़ रहे हैं. सो यहाँ पे लिविंग ऑफ कैंपस किस चीज का है? स्कूल का. Clear? So our first sentence is there are more than 100 schools in the country. This is important that you see the facilities. First sentence है हमारा this one first, then next second, then third, and the last one is fourth. So our reorder is 1, 3, 2, 4. यहाँ पर देखिए स्कूल्स की बात है, स्कूल्स के बाद जो आपका थर्ड सेंटेंस है यहाँ पे द स्कूल्स की बात है. मीन्स कि ये प्लूरल है, बहुत सारे 100 स्कूल्स में से जो जो स्कूल हमारे लिए स्पेशल है, तो यहाँ पे जब स्पेशल आएगा जिसका हम अकोमोडेशन चेक कर रहे हैं तो आर्टिकल में द वर्ड यूज हुआ है. द स्कूल, स्कूल्स, हमेशा स्कूल्स के बाद ही द स्कूल आएगा क्योंकि ये होता है हमारा प्लूरल टू सिंगुलर रूल. प्लूरल मीन्स कि 100 स्कूल्स में से जो हमने चूज किया है उस स्कूल में कुछ खास रहेगा. क्लियर? सो आवर फर्स्ट आंसर इज देयर आर मोर देन 100 schools in the country. Then second sentence is never, if you can avoid it, accept the offer before going to the place and having a look. You should go and see once you have a chance. Then our third sentence, this is important that you see the facilities and accommodations around the school. Then our last sentence, because you might be living off campus in the second year. So our answer is 1, 3, 2, 4. Next, Norbert Elias. There is however, however it means हमारा first sentence नहीं है. No search facility, किसी चीज में search की facility नहीं मिली. The site lists, the site, it means जैसे मैंने पहले भी बताया था the site पहले नहीं आएगा. Clear? It means कोई site है या फिर बहुत सारी sites हैं, उसमें से कुछ भी स्पेशल है उसमें, देन उसके बारे में बात करेंगे. देन ही मटेरियल हैज बीन कैटलॉग. ओके, ये यहाँ पे बाय मिस्टेक ही लिखा हुआ है, सो यहाँ पे आएगा द मटेरियल हैज बीन कैटलॉग्ड, क्रॉस रेफरेंस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय डेट. लेट मी चेक. यहाँ पे देखिए द साइट नॉट ओनली पब्लिश्ड बुक्स, कुछ भी कैपिटल नहीं है. अब यहाँ पे देखिए जब भी किसी भी सेंटेंस में हमारे पास कुछ भी कैपिटल में होता है, इट मीन्स बहुत ज्यादा 99% चांसेस होते हैं कि वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है. क्लियर? This site contains a comprehensive listing of the works of Norbert Elias, a German sociologist. जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है नोबर्ट इलास. दिस साइट, यह साइट उनके बारे में कंटेन करती है कॉम्प्रिहेंसिव लिस्टिंग ऑफ वर्क. सो दिस इज आवर first sentence. Then there is however
नो सर्च इंजन, बट साइट के लिए क्या है, कोई भी सर्च इंजन नहीं है। द मटेरियल हैज बीन कैटालॉग, जो मटेरियल है वो कैटालॉग किया गया है, क्रॉस रेफरेंस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय डेट्स, डेट्स के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज किया गया है। देन आवर लास्ट सेंटेंस, द साइट लिस्ट्स not only his published books and articles but also manuscripts, manuscripts क्या होता है, जो चीजें हाथ से लिखी हुई है, मीन्स कि जो प्रिंटेड, जो टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं है, जो हैंड रिटन है। एंड ओरल कम्युनिकेशंस, ओरल कम्युनिकेशंस मीन्स हो सकता है कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी ऐसी टॉक हो जिसको रिकॉर्ड किया हुआ हो, so that is oral communications in a variety of media and including reprint and translations, जिसको reprint भी किया जा सकता है और translate भी किया जा सकता है। So our first answer is third one. The site contains comprehensive listing of the works of Norbert Elias, a German sociologist. Norbert Elias नाम दिया हुआ किसी का कैपिटल में, तो इट मीन्स ये क्या है, बिल्कुल प्रॉपर नाउन है, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है, उनके बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में बताया हुआ है कि बाय प्रोफेशन वो क्या है, सोशियोलॉजिस्ट है। देन नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, देयर इज नो सर्च इंजन, देयर इज हाउएवर नो सर्च इंजन, कोई भी सर्च इंजन की फैसिलिटी, सर्च फैसिलिटी नहीं है। देन थर्ड सेंटेंस इज द मटेरियल हैज बीन कैटलॉग, बट क्या किया गया, मटेरियल को कैटलॉग किया गया है। देन हर लास्ट सेंटेंस इज द साइट नोट ओनली हिज पब्लिश्ड बुक्स, जो साइट है वो सिर्फ पब्लिश्ड बुक्स के बारे में ही नहीं है, बल्कि मैन्युस्क्रिप्ट्स और ओरल कम्युनिकेशंस भी वैरायटी ऑफ मीडिया से वहां पे दिया गया है। सो आवर आंसर इज 3142। देन नेक्स्ट, Dutch actors, however दिया होता है, इट मींस हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं है, इन अ वंडरफुल सेट ऑफ डेज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कैपिटल दिया हुआ है, जो भी कैपिटल है उसको हम हाईलाइट करेंगे, कैपिटल। ओके, इन अ वंडरफुल सेट ऑफ स्टडीज and subsequent book, Elias A. Onjin look to question of how much actors are aware of their performance as they perform it and how much they let the character take over. एक वंडरफुल सेट ऑफ स्टडी है जो सब्सिक्वेंट बुक है जिसका नाम है एली ए कॉन्जिन लुक टू अ क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि हाउ मच एक्टर्स आर अवेयर ऑफ देयर परफॉर्मेंस, कि जो एक्टर्स है वो अपने परफॉर्मेंस के बारे में कितने अवेयर होते हैं एज दे परफॉर्म इट, जब वो उसको परफॉर्म कर रहे हैं, और हाउ मच दे लेट द कैरेक्टर टेक ओवर, और वो कितना उस कैरेक्टर के वो इंजॉय करते हैं, टेक ओवर करते हैं। सो दिस इज अ फर्स्ट सेंटेंस, क्लियर, किसी का नाम दिया हुआ है। सेकंड थिंग, किस चीज के बारे में, एक्टर्स के बारे में बात हुई है, क्लियर। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज सी फाउंड दैट, फाउंड इट मींस हमें कोई रिजल्ट मिला है। देन इससे पहले क्या करेंगे, सी आस्क्ड Dutch actors to rate their own emotions and इमोशंस ऑफ द कैरेक्टर्स। यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट सेंटेंस था इसमें कैरेक्टर की बात थी, यहाँ पर भी कैरेक्टर की बात है। जो नेक्स्ट लाइन होगी, हमेशा कुछ की वर्ड्स हमेशा मैच करेंगे वहां पर। कैरेक्टर दे वर प्लेइंग अक्रॉस अ रेंज ऑफ अफेक्टिव स्टेट्स फ्रॉम डिस्गस्ट एंड एंजाइटी टू टेंडरनेस एंड प्लेजर, मीन्स की दिया हुआ है, नेगेटिव फीलिंग दी हुई है, पॉजिटिव फीलिंग्स दी हुई है। तो क्या कहा हुआ है यहाँ पे कि जो इमोशंस है, खुद की इमोशंस है, ये जो कैरेक्टर की इमोशंस है, वो कितना अफेक्ट करती है उनको, क्लियर। सो दिस इज आवर सेकंड सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल नाम दिया हुआ है किसी का, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक्टर्स के बारे में कि कितना वो परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं, कितना उस कैरेक्टर को टेक ओवर करते हैं। देन सी आस्क्ड डच एक्टर्स, उन्होंने डच एक्टर्स से क्या किया, पूछा है कि इमोशंस को क्या रेट करते हैं, कैरेक्टर में कैसे जाते हैं। देन सी फाउंड दैट, फिर उन्होंने क्या पाया, सी फाउंड दैट पॉजिटिव इमोशंस वर often felt by the actors as they played those characters emotions. सी फाउंड दैट, उनको मिला जो पॉजिटिव इमोशंस होती है वर ऑफ्टन फेल्ट बाय द एक्टर्स, एक्टर्स को बहुत जल्दी टेक ओवर कर लेते हैं क्योंकि वो उस चीज को, इमोशंस को, उन इमोशंस को एंजॉय करते हैं। हाउएवर द नेगेटिव इमोशन, however more negative the emotion of the character, the less likely the actor would report feeling that emotion on stage. जो नेगेटिव फीलिंग होती है उनको उतना अच्छे से नहीं कर पाते जितना कि पॉजिटिव फीलिंग्स को। सो आवर फर्स्ट आंसर इज in a wonderful set of, in a second one,
then she asked, fourth one, then she found, third one, and the last, however. So our right reorder is 2, 4, 3, 1. The mind wandering. The first group was asked. फर्स्ट ग्रुप से क्या पूछा गया? इट मीन्स हमें नहीं पता क्या बात है. When the task was over, जब टास्क ओवर हो चुकी थी. रिसर्चर स्टडीज, यहाँ पे देखिए रिसर्चर्स का आर कैपिटल है, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन कम्युनिटी लिखा हुआ है, रेंजिंग ऑफ एज ग्रुप 65. क्लियर, काफी कुछ है. तो इट मीन्स हमारा ये क्या है? फर्स्ट सेंटेंस है. दिस इज आवर first sentence. Researchers studied researchers studied groups of people from the University of Wisconsin Madison community ranging in age from 18 to 65. Clear? This is our first sentence. Next, age group दिया हुआ है. The first group was asked to perform simple tasks like pressing a button every time they look up there or clicking in response to a letter popping up on the computer screen. These tasks were so easy that their minds were likely to wander, the researchers figured. Researchers जब study कर रहे थे उन्होंने क्या figure out किया? टास्क इतना ज्यादा इजी था कि जब पार्टिसिपेंट्स उसको कर रहे थे तो उनके माइंड वंडर कर सकते थे क्योंकि वो बहुत इजी टास्क थी. देन नेक्स्ट, द रिसर्चर्स चेक्ड इन पीरियोडिकली. देन रिसर्चर्स ने क्या किया? पीरियोडिकली डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को चेक किया, आस्किंग द पार्टिसिपेंट्स इफ देयर माइंड्स वर ऑन टास्क और वंडरिंग, कि उनके जो माइंड्स है इतनी इजी टास्क है कि उस टास्क के ऊपर ही रहते हैं जब वो काम करते हैं, फोकस्ड हैं, या फिर उनके माइंड वंडर कर रहे हैं. Then next, when the task was over, they measured each participant's working memory capacity by having them remember letters while doing math equations. When the task was over, जब task over हुई, they measured each participants, हर एक participant को उन्होंने measure किया working memory capacity by having them remember letters, letters को remember किया while doing math equation. This is our fourth sentence. And the last one, though all participants performed well, सभी participants ने कैसा किया? perform well किया on the task. The researchers noticed that, researchers ने क्या noticed किया? The individuals who indicated their minds had wandered more than others also scored higher on the working memory test. So this is our last. So our first answer is the researchers studied, researchers को study किया. Then our second is the first group ने क्या किया? फर्स्ट ग्रुप को टास्क दी गई जो काफी सिंपल थी. देन नेक्स्ट, द रिसर्चर्स चेक, रिसर्चर्स ने चेक किया. देन व्हेन द टास्क वाज ओवर, जब टास्क ओवर हुई तो एज अ रिजल्ट पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि उनके माइंड भी अच्छे से काम कर रहे थे और इंडिकेट हुआ वो कि चाहे जो टास्क थी इतनी सिंपल थी, चाहे वो फोकस थे, चाहे वो वंडर कर रहे थे, सभी ने अच्छा परफॉर्म किया. सो आर रीऑर्डर इज 3, 1, 5, 2, 4. Our next reorder is American mink. डायरेक्ट कंपटीशन बिटवीन दीज स्पीसीज, हमें नहीं पता कौन से स्पीसीज है. दीज स्पीसीज इट मींस हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं है. डायरेक्ट कंपटीशन बिटवीन, कंपटीशन कब होगा? जब हमें पता होगा कि कौन कौन से स्पीसीज है. नेक्स्ट है अमेरिकन मिंक हैज बीन प्रेजेंट इन आइसलैंड सिंस 1930s. काफी सारे क्लू है यहाँ पे. आइसलैंड दिया हुआ है, 1930s दिया हुआ है, 1939 दिया हुआ है, अमेरिकन मिंक को कैपिटल किया हुआ है. क्लियर? सो दिस इज आवर फर्स्ट सेंटेंस. रीड करते हैं क्या दिया हुआ है. The American mink has been present in Iceland since the 1930s and despite having hunting होने के बावजूद भी since 1939 the species has become well established. 1939 से आज भी वो species establish कर रहे हैं जबकि वहां पे hunting भी है. तो उसका कारण क्या है? Then our next sentence is
Iceland is therefore an ideal place to study undisturbed feeling behavior and ecology of mink. The ecosystem in Iceland is simpler than in other areas where mink are found. The only other mammalian predator in the Arctic, fox. It means American mink जो वहां पे हैवी हंटिंग कौन कर रहा है? क्लियर? बिकम वेल एस्टेब्लिश हंटिंग के बाद भी वहां पे जो क्या है वेल एस्टेब्लिश्ड है. द इकोसिस्टम इन द आइसलैंड, जो आइसलैंड इकोसिस्टम है वो कंट्रीब्यूट करते हैं उनको सर्वाइव करने में. देन इन अदर एरियाज वेयर मिंक आर फाउंड द ओनली अदर मैमेलियन, दूसरे जो मैमल्स हैं उनका नाम क्या है? आर्कटिक फॉक्स. क्लियर? सेकंड स्पीसीज क्या है हमारे पास? आर्कटिक फॉक्स. दिस आर सेकंड सेंटेंस. Then third, direct competition. Definitely direct competition between these species. These species means American mink and Arctic fox appears to be minimum, although the Arctic fox will sometimes chase mink and disturb them while foraging. Then our last sentence, Iceland is therefore, इसलिए जो Iceland क्या है? An ideal place to study undisturbed feeding behavior and ecology of mink. So our first answer is second one. The American mink has been present in Iceland since the 1930s, and despite heavy hunting since 1939, the species has become well established. Then our fourth sentence, the ecosystem in the Iceland is simpler than in other areas where mink are found. The only other mammalian predator in the Arctic, fox. Then our third sentence is first one, direct competition between these species, and then our last sentence is third one. So our right the reorder paragraph is 2, 4, 1, 3. So I think you find it useful. Please practice these questions and maybe these questions are appear in your final exam. Thank you. Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.